हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब ठीक होंगे। सो दिस इज़ प्रेरणा हियर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द एडिटोरियल सेक्शन एंड द एक्सप्लेन पेज of the Indian Express with you all guys. Before starting the Indian Express today, there are so many articles which we are going to discuss. It's very important from the exam point of view and obviously from our knowledge point of view. We are going to get so many knowledge from today's paper. And before starting, I want to tell you that it's okay, it's fine to listen the analysis video, but it's not okay to not reading the newspaper. Okay, you have to read the newspaper. It's very important to read a newspaper. Do listen to the analysis video, but read the newspaper by your own. Okay, so let's just start. So the first article which we are going to study is this one, which is written by none other than Ashok Gulati sir, and then many other authors are also there, but Ashok Gulati sir is a very important agricultural expert. Even the government of India concerns him time to time on the agriculture part. So guys, देखिए अभी क्या हो रहा है कि इंडिया इज़ राइट नाउ for the state government and the central government, both the governments are pushing a lot on the infrastructure, for building the infrastructure. So one of that infrastructural push has been made in the Andhra Pradesh, where the government of Andhra Pradesh has invited Google for making the AI data center, and also Google has committed. See, this is so here you can see that Google has committed of $15 billion to a 1 gigawatt AI data center in Visakhapatnam. ठीक है, so the author is raising a little bit of concern, also praising also that okay, wow, it's a great thing that Google is coming to establish a data center in Visakhapatnam. It's fine, it's okay, but definitely there will be something for the agriculture to also face that. And what it is that where there will be AI data center establishment, there will be a crunch of electricity in that particular area. Now what will happen, the electricity which were used by our farmers, that will be diverted to this AI data center. So this is an issue, but definitely we have to go for an infrastructural push. So the author is giving solution also, that how we can develop the AI data center along without compromising over the electricity which are being provided to the farmers. Okay, so what's that? Let's start. This is the crux which I have given to you in the entire article. So the Google has committed $15 billion to a 1 gigawatt AI data center in Visakhapatnam. It is expected to be the largest such center in Asia. It's very important that ये AI data center एशिया की सबसे बड़ी data center होने वाली है, which when it becomes operational in 2028 में ये operationalize होगी. ठीक है, और such a large data center will require 24 gigawatt hour of power each day. Now this is a concern. हर दिन इसे 24 gigawatt hour of power चाहिए होगा. Meeting this demand by diverting the power from other consumers, particularly agriculture, could provoke social tensions, while expanding thermal generation would come at an unacceptable environmental cost. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो जैसे इतना हाई 24 गीगावाट आवर ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस AI डेटा सेंटर को, बट इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अदर कंज्यूमर है, इस पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, एंड इट विल प्रोवोक द सोशल टेंशन. डेफिनेटली व्हेन द फार्मर्स विल नॉट गेट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग. सो देयर विल बी सोशल टेंशन. एंड सेकेंडली, अगर इसको फुलफिल करने के लिए अगर थर्मल जनरेशन का और यूज़ किया गया, तो इट विल ऑल्सो बी एट एनवायरमेंटल कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी थर्मल जनरेशन से काफ़ी एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, और उसे फर्दर एक्सपैंड करते हैं अगर हम लोग, तो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द थर्मल एनवायरमेंटल कॉस्ट. एंड वी ऑल नो दैट AI data center also has some environmental footprints, right? So on one hand, AI data center it will cause the environmental footprints. On the other hand, we will expand the thermal power center, उससे भी हमारा इन्वायरमेंटल नुकसान हो जाएगा. तो ओवरऑल इन्वायरमेंटल नुकसान, सोशल कोहेशन पे सोशल टेंशंस होगा. तो क्या सॉल्यूशन है? सो नेक्स्ट ऑथर इज सेइंग आंध्र प्रदेश विल हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स लाइक द न्यूक्लियर एनर्जी और रीन्यूएबल्स लाइक द सोलर पावर, राइट? मतलब अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें
AI डेटा सेंटर तो बनेगा, बट साथ ही साथ हमें फार्मर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी फुलफ़िल करनी है, डेटा सेंटर की डिमांड भी फुलफ़िल करनी है, और साथ ही साथ थर्मल पावर एनर्जी को और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। थर्मल जनरेशन जो थर्मल पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसे और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल ब्रिंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट. सो what is the solution? Solution is either we have to go for nuclear energy to generate the power, or we have to go for the solar power energy. Now comes the thing. Herein lies an opportunity for the agri households to become participants in the emerging AI economy by generating the clean electricity while continuing to cultivate their land. यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि यहाँ पर फार्मर्स के पास, एग्री हाउस होल्ड जो कि फार्मर्स हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस इमर्जिंग एआई इकोनॉमी में अपना योगदान दे, और साथ ही साथ वो अपने लैंड को भी कल्टिवेट कर ले. ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे द फार्मर्स आर ऑल्सो गोइंग टू कीप डूइंग द फार्मिंग एक्टिविटी, अलॉन्ग साइड दे आर गोइंग टू help in developing this AI economy. How is it possible? So let's come here. This is the solution. So this particular here is the solution which author has given. Author is saying that farmers should install एग्री फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स. ठीक है, ये एग्री फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स जो है वो लैंड के 10 to 15 फीट ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे क्या होगा, उसके नीचे हाई वैल्यू क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं और ऊपर में सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं. तो एक तरह से हमारे लिए ये जो सोलर पावर है, सोलर जो एनर्जी है, दिस विल लिटरली बिकम द थर्ड क्रॉप फॉर द फार्मर्स, राइट. See here it is written, where it is, yeah, this one. See, in such agri photovoltaic system, solar energy is virtually the third crop and augment farmers income, right. एक तरह से फार्मर के पास सोलर एनर्जी से वो सोलर पावर से वो एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है. एनर्जी जनरेट करके वो एनर्जी वो जो पावर जनरेट करेंगे उसे सेल कर देंगे एआई डेटा सेंटर को, यहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलेगा. साथ ही साथ वो अपने फार्म लैंड के लिए भी जनरेट कर लेंगे, वहाँ पर उन्हें उसके साथ साथ तो नीचे में वहाँ पे 2 फूड क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ से उन्हें रेवेन्यू जनरेट होगा. तो AI data center, establishing the AI data center in this way is not going to put any kind of pressure on farmers' income. Rather, it is giving an opportunity for the farmers to increase their income, right? That is what the crux of this entire article. ठीक है, इस पूरे entire article का यही है. तो author is saying that one more thing which author has said in this, that already in Rajasthan pilot projects has been installed on this agri photovoltaic system, जिसपे काफ़ी farmers को फ़ायदा हुआ है. Second thing author is saying that if Google do out of its profit which Google is going to earn, अगर वो अपना कुछ प्रॉफिट फार्मर्स के इस एग्री फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स को इंस्टॉल करवाने में हेल्प करते हैं, तो गूगल की काफ़ी ट्रस्ट सोसाइटी पे बढ़ जाएगी, इससे गूगल को हेल्प मिलेगा. दिस इज़ वॉट द ऑथर इज सेइंग. द एंटायर आर्टिकल में ऑथर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश that see, come and install the agri photovoltaic system on the farmer's land. This agri photovoltaic system will be at 10 to 15 feet above the land, so it will virtually become the third crop. The solar energy will become the third crop for the farmers. So farmers will have a 3 crops in a way, and will have a more income, more source of revenue now. So this is all about AI. This is the theme guys, AI and agriculture. ठीक है. Next article. This article. Now this article is about the privatization and the petroleum. See guys, हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं इंडिया में, अपने भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ऑफशोर एरियाज़ पर है, ऑनशोर एरियाज़ में भी है, ठीक. तो पॉइंट क्या है कि बट इंडिया के पास अपना इतना ज़्यादा पेट्रोलियम नहीं है. वी इम्पोर्ट द क्रूड ऑयल अराउंड more than 80% of the crude oil we import, right. We import from the Middle East, that is the West Asia for us. We import from Russia, we import from Latin America, including the country of Venezuela, etc., many countries, right. But of late we are seeing that there is a crisis which is going in the West Asia, and this West Asian crisis has put a huge pressure on us. We are energy dependent country, import dependent country, and it has yielded us a strong cost
because of this West Asian crisis. There is also a navigation issue, and we are not able to bring our oils from these areas, the Strait of Hormuz areas. From Russia also we are little bit in difficulty because of the America tariff issue. So we are facing trouble in importing the crude oil. So under this context, author is actually taking up a issue, taking up a point, making a point of privatizing the petroleum reserves. या प्राइवेटाइजिंग राइट नाउ अभी पूरी तरह जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व्स जो भी है इंडिया में, जो कंपनीज़ ONGC हो गई, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई, जो कि ऑलरेडी इन सब ऑफशोर एरियाज से पेट्रोलियम निकालने का काम कर रही है, तो ये सारे कंपनीज सब गवर्नमेंट ओन्ड है. तो अभी ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर इन दिस फील्ड. वाई सो? नाउ द थिंग इज़ वाई सो, सी ऑलरेडी प्राइवेट ओन्ड भी है कहीं कहीं पे, बट जो गवर्नमेंट ओन्ड है उसमें प्राइवेटाइजेशन लाने की बात ऑथर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, सो दिस आर्टिकल द ऑथर इज से हैज़ सी here it is. See, the four systemic shifts the conflict in the Middle East has wrought on the petroleum market. First, faltering trust in the US security umbrella. हमारे पर US सिक्योरिटी पे कोई भी अब ट्रस्ट नहीं रह गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इट बीन सो लॉन्ग दैट US हैज़ नॉट बीन एबल टू सिक्योर अ फ्री एंड ईजी नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज इट वॉज बिफोर, राइट? सो हम US पे अब ट्रस्ट नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ क्या है, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जो है वो हमेशा एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? ईरान वाज एक्चुअली ऑन अ डाउन साइड. जब US और ईरान की जो वॉर हो रही थी उस टाइम पर ईरान के पास जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा तो ईरान स्टार्टेड चोकिंग दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमेशा, और इससे क्या हो गया कि ईरान हैज़ कम ऑलमोस्ट लेवल टू द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड टू अमेरिका. सो दिस मैरीटाइम चोक पॉइंट्स आर बीइंग यूज्ड एज अ यूज फॉर द बैलेंस ऑफ पावर. So it's very important to consider this thing also. The third point author is saying, the emergence of faction in Iran driven more by a goal of building back the Iranian economy than defending the principle of 1979 revolution. Iran matlab now it is in third point author is saying that Iran is now concerned mainly for building its own economy. It's not considered anymore about the freedom of navigation around the Strait of Hormuz. And the fourth point author is talking about the OPEC's weakening influence. पहले क्या था, OPEC जो है, ओपेक का अपना जो ओपेक क्या है, एक आप बोल सकते हैं कार्टेल है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का. ठीक है, वो सब एक साथ मिलकर डिसाइड करते थे. ईरान भी उसका एक पार्ट था. तो जब सारे ओपेक के सारे कंट्रीज़ अगर बोले और ईरान को कि ईरान डोंट डू दिस बिकॉज वी आर ऑल्सो सफरिंग, अगर सी लेट मी एक्सप्लेन. सी गाइस, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी चोक्ड है पूरी तरह से, वहाँ से शिप्स पास नहीं कर पा रही है, ऑयल शिप्स पास नहीं कर पा रही है. तो सिर्फ क्या मतलब किसको नुकसान हो रहा है? जो बाकी सब ऑयल कंट्रीज़ हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है, राइट? दे आर ऑल्सो इन ट्रबल राइट नाउ. सो but these OPEC countries together are not able to bring the Iran on the table and tell it to just stop this all things. So there is a weakening influence of OPEC countries. Okay, so guys, ये 4 points से जो author explain किए थे. In his older article, he has made these particular 4 points that the crux of this, that the petroleum market has today changed and it is going to remain changed. It is not going to be rolled back कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नेविगेशन इस तरफ फ्री रहेगा हमेशा. नो, वी कैन नॉट बी एश्योर्ड अबाउट दिस थिंग. सो नाउ द ऑथर इज सेइंग this one, a potential positive flip is the evidence that the crude oil market is structurally oversupplied. देखिए, फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि हमें इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि अभी जो है क्रूड ऑयल इतने ज़्यादा क्राइसिस के बाद भी प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी. Even at the height of the conflict, crude prices did not stay elevated above $100, right? वो it remained low only, it remained stable only with a quite increase in the price, all because there was a oversupply,
ऑलरेडी ऑयल मार्केट में ऑयल वाज ओवर सप्लाइड, दैट्स वाई. दूसरी बात यह है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू प्राइसेस हैव फॉलन एज शार्पली एज दे रोज. द करेंट पॉज इन द बॉम्बिंग हैज़ ब्रॉट प्राइसेस डाउन फ्रॉम जस्ट $100 टू बिलो $90. डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू दैट मीन्स बिटवीन ईरान एंड यूएस. ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि जैसे ही एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, जैसे रिसेंटली वी witnessed that there was a interim peace deal between the US and Iran. So there was a ceasefire, और ceasefire में immediately क्या हुआ, ऑयल का प्राइस इमीडिएटली कम हो गया. ऐसे बीच बीच में डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हुआ, देयर वाज अ सीज फायर इन बिटवीन एंड सडनली ऑयल प्राइस वेंट डाउन. बट this is not a permanent thing. Now we have to take care of a permanent thing. So now the author is saying that it is against this redrawn landscape that a question posed above bears relevance. And what is this question? In the first line only he has posed a question: should the government privatize the petroleum exploration and production, public enterprises, oil and natural gas corporation and Oil India Limited? ठीक है, क्या गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करे या नहीं. उसके बाद ऑथर इस पूरे पैराग्राफ में ना ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द पेट्रोलियम मार्केट हैज़ चेंज्ड, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फ्रॉम द थ्रू द मैरीटाइम चॉक पॉइंट. और also we cannot trust US anymore for the maritime security purpose. We cannot trust Iran also. Why? Because Iran is now for its building its own economy. ठीक है. प्लस वी हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट ऑल्सो दैट द ऑयल मार्केट वॉज स्ट्रक्चरली ओवर सप्लाइड. सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस क्वेश्चन दैट वेदर द ONGC और ऑयल शुड बी प्राइवेटाइज और नॉट बिकम्स रेलिवेंट. नाउ ऑथर इज सेइंग दैट domestic crude production has dropped almost 20% over the past decade. Author is talking about this ONGC oil कि ऑलरेडी हमारा जो डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन है वो कम गया है, पहले से 20% ड्रॉप हो चुका है. सेकेंड, इंडियाज़ हाइड्रोकार्बन रिसोर्स लाई इन कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी एंड ऑफशोर एरियाज़. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी और ऑफशोर एरियाज़ में लाई करता है. इट्स डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू लोकेट. एनालिस्ट एस्टिमेट फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन ONGC's करंट फोकस एरियाज ऑफशोर गोदावरी, महानदी, अंडमान बेसिन्स कुड बी बिटवीन दिस. तो ओवरऑल इन दिस सेकेंड पॉइंट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट. सपोज ONGC और ऑयल कंपनी जो है वो ऑलरेडी जिस ऑफशोर एरियाज़ में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वहाँ पे 20% ड्रॉप हो चुका है पहले से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में. सेकेंड पॉइंट वी ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट द if the company will go for further exploration and want to increase its production petroleum, then what will happen, the price will increase. If it try to go for increase in the domestic crude production, then the price will increase. And obviously since it's a public enterprise, the prices will be it will be a burden on government definitely, and government always have a limited amount to spend. So now the author is talking that, or also in this entire thing, just a minute guys, this one, इसमें author next paragraph में he has talked about that our strategic reserve, oil reserves is also very low. ठीक है, जबकि वी कैन सी दैट द रोबस्ट स्ट्रैटेजिक बफर से 60 डेज़ इम्पोर्ट, चाइना के पास 120 डेज़ का है, हमारे पास अभी कितने दिन का, 12 डेज़ का सिर्फ. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 12 डेज़ का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, जबकि चाइना के पास 1 मिनट रोबस्ट स्ट्रैटेजिक बफर से 60 डेज़ ऑफ इम्पोर्ट्स एंड हमारे पास 12 डेज़ का है गाइस. पर ऐसे नहीं है कि अभी हमारे पास ऑयल नहीं, ऑयल है, मतलब स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात की जा रही है. स्ट्रैटेजिक रिज़र्व 6 to 7 डेज़ की है. ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 to 7 डेज़. ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 to 7 डेज़ है. ठीक है, चाइना के पास 120 डेज़ है और बाकी कंट्रीज़ के पास 90 डेज़ का है. और अगर हम अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व को बढ़ाना चाहते हैं तो वी नीड मनी, राइट, फॉर इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन, ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग द आवर स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑफ द क्रूड ऑयल. सो वी नीड मनी, बट ऑब्वियसली वी नो that since these companies ONGC and oil companies are
public enterprises. Public enterprise means the money will come from government, and government always have a limited money to spend upon, right? So definitely funding is a big issue. So author is making a point for going for the privatization of ONGC or oil companies. Why? Because funding is needed for increasing the domestic crude production overall in this entire changing petroleum market. So this is about this article. Third article, this one, okay. So I am giving the crux of this article. इसमें क्या है, इसमें अच्छा guys, I want to tell you that today I have already uploaded a notes of the articles which I am explaining. The crux, the important pointers which you need to take out of these articles to write, to add up in your answers, those I have already made up notes and I have uploaded. You can join the Telegram channel, which the link of it I will provide it here. So join it, you will get the PDF. अच्छा, तो in this article author is talking about that we are seeing that there are so many welfare activities which are being taken by government, like the giving freebies to the women, or before we used to go for the Manrega. Author is telling Manrega also as a freebies, as a welfare activity only. So she is saying that but the discussion on this welfare activity is not about what the good which the government is, what the good which people will have from these welfare activities. Rather, the issue is, or concern is being raised on the fiscal burden which the government is going to bear. Okay. She is saying now the last few years have seen debates on the nature of welfare interventions and the modes of delivery. कि किस तरह का कैसे what is happening? See, कि कैसा वेलफेयर इंटरवेंशन किया जाए और किस रूट से दिया जाए. जैसे कि पहले क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोल के ऐसा कुछ नहीं था, बट सिंस विद द टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ आधार एंड ऑल, नाउ दिस इज़ द मोड ऑफ डिलीवरी. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सेकेंड और थर्ड पर्सन, राइट. तो अभी इसके ऊपर है कि किस तरह से एकदम डायरेक्ट इंटरवेंशन हो, लीकेज ना हो, किसी तरह के भी ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई हो. प्लस उसके ऊपर है कि नेचर ऑफ वेलफेयर इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट जिस तरह का भी वेलफेयर एक्टिविटी कैरी कर रही है उसको मतलब किस तरह का होना चाहिए. क्या इज़ इट ओके टू गिव अ फ्री बस राइड फॉर अलाउइंग द फ्री बस राइड फॉर ऑल, और इज़ इट okay to give a free bus ride only for the women, because data has shown that the giving free bus ride for the women has actually increased the mobility of women, right. women का mobility बढ़ गया है. But if government give free bus ride to every citizen of its state, then that will definitely cause some fiscal burden. So now the debate is upon this, that what kind of welfare intervention shall be there, but the talk is not much upon what will be the result of this kind of welfare intervention, what good or what benefit these interventions will bring to the citizens. ठीक है. तो she is saying that ज़्यादा से ज़्यादा बात रिसोर्स एलोकेशन पे हो रही है. स्टेट की क्या कैपेसिटी, स्टेट देने के लायक है या नहीं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है इस बात पे कि नहीं, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट बहुत फ्रीबीज भी देती है ना, तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कम होते जाते हैं. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है. तो the discussion on the welfare is often limited to its fiscal impact, framed as a drain on resources, often blurring the lines between welfare as a right and welfare as a freebies. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. सी गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट है फिजिकल इम्पैक्ट. दिस इज़ अ वर्ड, देन अनदर वर्ड ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, एंड देन द थर्ड वन वेलफेयर एज अ राइट एंड वेलफेयर एज फ्रीबीज. लेट मी एक्सप्लेन. फिजिकल इम्पैक्ट, अगर कोई भी फ्रीबीज सरकार लेकर आती है तो उसका क्या फिजिकल इम्पैक्ट का मतलब सरकार के खाते से कितना पैसा जाएगा, सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा जाएगा, दैट इज़ द फिजिकल इम्पैक्ट. सेकेंड, क्योंकि देखिए फ्रीबीज का क्या होता है, फ्रीबीज इज़ नॉट गोइंग टू जनरेट डायरेक्ट, वी कैन नॉट सी दैट इन काइंड ऑफ डायरेक्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. गवर्नमेंट जैसे कोई पैसा खर्च करती है तो इट इज़ लाइक कि इट शुड इंक्रीज द GDP, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अभी कहीं पर कोई स्कूल बनाती है, ठीक है, स्कूल बना रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सोशल GDP बनेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल
लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. गवर्नमेंट सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है, ठीक, सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि सेमीकंडक्टर कंपनीज बने. तो सेमीकंडक्टर के लिए जो बन रही है, इंडस्ट्रीज़ बन रही है, सेक्टर्स बन रही है, इसमें क्या होगा, जॉब होगा, जनरेट होगा. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, सपोज मान लीजिए कि गवर्नमेंट 1000 रुपीज़ खर्च कर रही है, लेकिन जो जॉब जनरेट होगा और जॉब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होंगे और गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगे, उससे ओवरऑल उस 1000 रुपीज़ से 10,000 तक का भी जनरेशन होगा. तो यहाँ से क्या है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है कंट्री की. बट अगर गवर्नमेंट सिर्फ आपके हाथ में आके 1000 रुपीज़ देती है, तो इट इज़ नॉट श्योर दैट आप क्या करते हैं उसका, right? Government is not going to ask you also that what you are going to do. Government is just giving 1000 rupees as a freebie to you. So it is not and government do not count it also that it is going to have any kind of economic activity. People can also drink from that 1000 rupees. People can use that 1000 rupees to make more generate more money out of that 1000 also, है ना. 1000 रुपीज़ का यूज़ करके कुछ बिजनेस करके 1000 का 2000 भी बना ले सकते हैं. बट गवर्नमेंट इज़ नॉट होल्डिंग यू अकाउंटेबल फॉर हाउ यू वांट टू स्पेंड दैट. सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीबीज. तो फिजिकल इम्पैक्ट प्लस उसका इसको ड्रेन, और इसीलिए इसको ड्रेन ऑन रिसोर्स माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है बट वो क्या इम्पैक्ट लाएगी इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी, इसका कुछ गारंटी नहीं है. तो इसे ड्रेन ऑफ रिसोर्स माने जाते हैं. इसी उसके बाद ऑथर इज थर्ड पॉइंट. Now government is right now in West Bengal also government has made one policy of providing 300,000 rupees, definitely for selective people. But now this 3,000 rupees or 1,000 whatever it is. So the question is, now this welfare, is it a right or is it a freebies? क्या ये हम एक राइट के तौर पे बोल सकते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ये हमारी राइट है, आप हमारे लिए वेलफेयर करिए, कि ये राइट है, या फिर गवर्नमेंट का दरिया दिल है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू गो फॉर गोइंग फॉर वेलफेयर एज अ फ्रीबीज. दिस particular the line between these two has blurred. Okay, so that is what author is saying. Now overall she is talking about that welfare is actually our right, because government needs to understand that the directive principle of state policy, DPSP, actually asks the government, asks the state that go for welfare activities, do some welfare to the people. So it's a welfare is actually our right, and the government should understand that this welfare activities bring a good to the people of this country, bring the socio-economic enhancement to this country. Okay, so she is viewing it as a constitutional right and an investment in the human development and inclusive growth, rather than merely as a fiscal burden or political freebie. Okay, got it? So एक पूरे आर्टिकल में यही है. आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं गाइस, तो मुझे थोड़े से क्रक्स मैं दे रही हूँ, ठीक है. तो ओवरऑल शी इज़ मेकिंग अ पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड that rights is our constitutional right, because DPSP asks for government to go for welfare activities. Also these rights, this investment, this welfare activities, the investment in the human development, and it brings the inclusive growth. So government should go for that without even thinking that it will bring fiscal burden, without even. This is about it. Next we are going to another article. So एक आर्टिकल यहाँ पर दिस वन गाइज ऑन दिस पेज इकोनॉमी सेक्शन पे एक आर्टिकल आई है लास्ट पे एकदम टी के ऊपर. वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द थीम इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द कल्टिवेशन और ऑन द एग्रीकल्चर. सो टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, टी के मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एंड दैट इज़ सी the overall market has been deflationary phase over the past 4 to 5 quarters driven by a combination of factors. देखिए गाइज, एक तो सबसे पहले क्या हुआ है कि इन जो टी की जो ब्रांडेड कंपनीज है ना, लोग अभी ब्रांडेड कंपनी से कम खरीद कर इम्पोर्ट इनफॉर्मल मार्केट से ज़्यादा खरीद रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि टी की जो ब्रांडेड कंपनीज है दे आर फेसिंग अ लॉस. फर्स्ट पॉइंट कि इनफॉर्मल मार्केट से खरीदने की वजह से उन्हें लॉस हो रहा है. सेकेंड पॉइंट जो उन्हें जो इशू आ रही है वो है एडवर्स वेदर से और राइजिंग चीपर इम्पोर्ट से. एडवर्स वेदर क्या है? दिस वन, द एडवर्स वेदर रिफर्स टू समर हीट वेव्स फ्लैग्ड बाय इंडस्ट्री बॉडीज, एंड द सेकेंड ड्राई स्पेल लेड टू हायर इन्फेस्टेशन इन टी प्लांटेशन, हायर पेस्ट इन्फेस्टेशन इन टी प्लांटेशन, अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, एंड ऑल्सो एक्सट्रीम हीट ऑल्सो डैम्पेंड कंज्यूमर डिमांड फॉर टी. मतलब जो
मतलब जो टेम्परेचर राइज़ हो रही है, क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर राइज़ हो रही है, उसकी टू साइडेड, टू प्रॉन्ग इफेक्ट हो रही है टी मार्केट के ऊपर। सबसे पहले ये हो रहा है कि जो समर हीट वेव्स है उसके वजह से एक लंबे समय तक समर हीट वेव्स है उसकी तो पहले इफेक्ट पड़ रही है। सेकंड थिंग, जो लंबे समय तक ड्रॉट का, जैसे इस बार वी हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर वाज अ रेन डेफिसिट, मानसून डेफिसिट इन द जून एज वेल एज इन द जुलाई। सो ये जो लॉन्ग ड्राई स्पेल है, मतलब लंबे समय तक जब बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से पेस्ट की जो इन्फेस्टेशन है वो भी बहुत बढ़ गई है। एंड द थर्ड थिंग, जब बहुत गर्मी रहेगी तो किसको चाय पीने की मन करेगी? किसी को नहीं। सो कंज्यूमर की डिमांड भी घट गई है और साथ ही साथ चीपर इम्पोर्ट्स हो रहा है, नेपाल से, केन्या से। दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन ओवर हियर कि नेपाल और केन्या से चीपर टी इंपोर्ट होने के कारण भी वी आर विटनेसिंग दैट देयर इज़ अ कॉस्ट विच द टी मार्केट इज़ राइट नाउ हैव टू इंकर अपॉन। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल। सो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल है डॉक्सिंग के ऊपर। डॉक्सिंग क्या होती है? डॉक्सिंग ये होती है कि आप इंटरनेट पर किसी की इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल कर उसे अगर आप टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ डॉक्सिंग। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द GS2 पॉइंट ऑफ व्यू। द एक्ट ऑफ पब्लिकली रिवीलिंग दिस वन, द एक्ट ऑफ पब्लिकली रिवीलिंग प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू इंटिमिडेट और सेम समवन इज़ नोन एज डॉक्सिंग। अच्छा, अब इस डॉक्सिंग से बचने के लिए इंडिया में क्या प्रोविजंस? तो इंडिया के पास एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है डॉक्सिंग से बचने के लिए। वी हैव अ फ्रैगमेंटेड ऑफ लॉज विच द ऑथर इज़ हैज़ टॉक्ड अबाउट इन। एक्चुअली एक लॉयर से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है, उस लॉयर ने जो भी लॉज बताई हैं वो लॉज इस पूरे आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारे आर्टिकल्स मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि सेक्शन 78 ऑफ द BNS हो गया, फिर उसके बाद सेक्शन 351 ऑफ द BNS, किसकी क्या यूज़ है वगैरह वगैरह, ऑल आई हैव मेंशन देयर। तो जिसमें बस इतना ही समझना है, प्लस ये समझना है कि प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, मतलब द लॉयर इज़ ऑल्सो सेइंग दैट दे प्लेटफॉर्म की भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि अगर कोई पर्सन इस तरह से कोई विक्टिम है तो उसे इमीडिएटली एक्ट करने पड़ेंगे इन द डिफाइंड वेल टाइम, अदरवाइज द प्लेटफॉर्म विल लूज़ द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या हो गया? हर प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिली हुई है जो टेक प्लेटफॉर्म से उनको। मतलब ये कि जैसे दो एंटिटी जब कुछ कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म बस एक मीडियम की तरह है। आई मीन टू से, अगर फेसबुक के ऊपर कोई पर्सन ए और पर्सन बी, अगर पर्सन ए को कोई पर्सन बी कुछ गलत कर रहा है या कुछ भी ऐसा, तो इसमें उस प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है। ठीक है, उस गलती प्लेटफॉर्म उस पर्सन बी की है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ द प्लेटफॉर्म विल हैव टू वर्क इमीडिएटली टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन ए, अदरवाइज दिस सेफ हार्बर विल बी लॉस्ट बाय दैट प्लेटफॉर्म। सेफ हार्बर लॉस होगा तो उन्हें बहुत नुकसान होगा, बिकॉज इमीडिएटली कंट्री ब्लॉक कर देंगे या फिर कुछ चार्जेस मांगेंगे। ओके, उसके बाद गाइज ये आर्टिकल आया था तमिलनाडु की इकनॉमी। तमिलनाडु की इकनॉमी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा है, इट हैज़ बीन अ इंडस्ट्रियल स्टेट, बट फिर भी स्टेट की जो रेवेन्यू है वो बढ़ नहीं रही। क्यों? दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे करप्शन की वजह से अगर कोई इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो भी स्टेट की रेवेन्यू डाउन जा सकती है। वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, इवेजन, एग्जेम्पशंस एंड टुगेदर मे प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कलेक्टिंग द इकोनॉमी ऑलरेडी जनरेटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, अगर कोई लॉ है तो उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पहले तो ये। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई लॉ है तो जो एम्प्लॉयज़ है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे करप्शन हो रहा है। ठीक है, मैनिपुलेशन हो रहा है, प्लस कहीं कहीं पे अच्छे से टैक्स नहीं लगे। तो राइट नाउ तमिलनाडु हैज़ अपॉइंटेड अ बॉडी। ठीक है, उस बॉडी को बहुत सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं कि आप इन सब पे काम करें ताकि हमें पता चले कि हमारी स्टेट अच्छे काम करने के बाद भी रेवेन्यूज़ क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बस आपको ये बताना था, ये जो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, इवेजन, एग्जेम्पशंस टुगेदर, इन सब से क्या होता है कि स्टेट की जो रेवेन्यू है वो डाउन होती है। एक अच्छा केस स्टडी है गवर्नेंस में कोट करने के लिए। उसके बाद गाइस लैंडस्लाइड के ऊपर आर्टिकल आया था, ये भी मैंने नोट्स में पर्टिकुलर प्रोवाइड कर दी कि लैंडस्लाइड क्या होता है। एज द वर्ड इट सेल्फ मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट लैंडस्लाइड क्या होता है। मतलब ये एक नेचुरल डिज़ास्टर तो है, बट देखिए पर्टिकुलरली अगर सॉइल, रॉक, जियोलॉजी, स्लोप कंडीशन, ये सब की इफेक्ट पड़ती है एक लैंडस्लाइड पे। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स भी है, और वो है फ्रैगमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, रोड्स, ब्रिजेस, फिर डिफॉरेस्टेशन। देखिए गाइस क्या होता है ना कि जो पेड़ हैं
वो उसकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। इससे क्या होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, आप इमेजिन करिए कि एक पहाड़ है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं। तो बहुत सारे जब पेड़ होंगे यहाँ पर, तो ये सब अच्छे से इसके जो जड़ें हैं, यहाँ पे जो मिट्टी है, ये जो माउंटेन है, आप इसको हिल समझिए, माउंटेन के ऊपर वहाँ तो नहीं, फिर हिल समझिए, तो यहाँ पर पूरी तरह से इसको जड़ें पकड़ के रखी हैं। अब क्या होगा कि जब बारिश होगी ना ज़ोर ज़ोर से, तो ये पानी जो है सिप करके अंदर जाएगा, ठीक। पर अगर आप इस पेड़ को काट देंगे ना, तो ये जो जड़ है अब यहाँ नहीं है। अब जब बहुत ज़ोर से बारिश होगी, अब इमेजिन जस्ट नाउ, अब आप इमेजिन करिए, हाँ, नाउ इमेजिन कीजिए दिस इज़ अ हिल, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑफ, देयर इज़ नो ट्रीज ओवर इट। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे बारिश आएगी ना, तो मिट्टी को बहा कर ले जाएगी। अब जैसे जैसे मिट्टी को बहा के ले जाती है, तो एक तो यहाँ की जो लैंड है वो वीक हो रही है। दूसरी बात, अब जो ये मिट्टी जा रही है, कहाँ जाएगी? रिवर्स में जाएगी, वाटर बॉडीज़ में जाएगी। तो इस तरह से जो मिट्टी यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट होगी, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है रिवर की, वो भी कमते जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये पर्टिकुलर हिल जो है ये वीक होकर ब्रेक हो जाएगी। ये ब्रेक होगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से रिवर की कैपेसिटी भी ओवरफ्लो हो जाएगी और रिवर भी फ्लड ले आएगा। तो लैंडस्लाइड, फ्लड, दिस इज़ एक्चुअली अ रीज़न, वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रोमिनेंटली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसलिए भी अभी जो उत्तराखंड में जो ट्री फॉलिंग के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं कि शिवालिक्स को बचाओ एंड ऑल, तो लिटिल बिट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट आवर tree felling process, our deforestation to bring the economic development, to bring the infrastructural development should be completely balanced with the ecosystem restoration. Okay, so this is for the article, and यहाँ पर एक इसरो ने डेटा प्रोवाइड की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड्स है ना, वो वेस्टर्न घाट में हिमालय से कम हुई है। इंडिया की दो ऐसे एरिया जहाँ लैंडस्लाइड बहुत होती है, हिमालय एरिया में, जहाँ पे आप अक्सर न्यूज़ सुनते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड आ गया, और केरला और वेस्टर्न घाट के एरिया में। तो वेस्टर्न घाट्स में हिमालय से कम हो रही है लैंडस्लाइड, बट डेटा हैज़ शोन दैट आउट ऑफ दैट ऑल्सो दिस वन केरला हैज़ विटनेस्ड मोर लैंडस्लाइड, and it is all mainly because of the human intervention, human induced, and also because of the huge rainfall which has of late been occurring in the केरला में तो ऐसे भी बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अंडर लास्ट आर्टिकल एक और आर्टिकल था, हाँ, ये आर्टिकल है, ये एक इन्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है, वाइल्ड बफेलोज़ के ऊपर है। वाइल्ड बफेलो छत्तीसगढ़ की स्टेट एनिमल है और इनकी पॉपुलेशन घटते जा रही है। सबसे पहले तो आप इसको ये समझ लीजिए कि IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज़ है। इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। तो इसकी पॉपुलेशन घटने के कारण छत्तीसगढ़ हैज़ प्लान टू ब्रिंग द वाइल्ड लाइफ बफेलो इन इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज़, पम्प्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंड द इंद्रावती टाइगर रिजर्व, यहाँ लाकर एक प्रॉपर प्रोटेक्शन में रखकर वाइल्ड लाइफ बफेलो की पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको समझ में आई होगी सब कुछ। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताएं। बाकी बाय, टेक केयर और कीप स्टडिंग गाइस एंड कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, जय हिंद, जय भारत।